الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ عزیز طلبہ و طالبات اور تمام ویورز، آج ایک بڑے وقفے کے بعد پھر سے میں آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں، عربی زبان و ادب کے ایک نئے موضوع کے تحت، جو موضوع اصل میں عوامل الفعل کے ضمن میں آ جاتا ہے، جس کا نام ہوگا کہ ہم جو کچھ افعال پڑھتے ہیں ان افعال میں افعال ناقصہ ایک قسم آتی ہے۔ چونکہ افعال ناقصہ کے متعلق آج ہم تھوڑی سی بات کریں گے، اور اس کے بعد حروف مشبہ بالفعل، جن کو الحروف المشبہ بالفعل بھی کہا جاتا ہے عربی میں، ان کے سلسلے میں ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے افعال ناقصہ جب ہم دیکھیں گے تو یہ افعال ناقصہ، چونکہ آپ کی 12ویں کتاب میں جڑا ہوا ہے ایک لیسن ہے، لہذا افعال ناقصہ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ افعال جو ہے فعل کی جمع ہے۔ افعال کس کی جمع ہے؟ فعل کی جمع ہے، اور فعل کس کو کہتے ہیں؟ ورب کو، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو لفظ ناقصہ ہے، یہ ناقصہ اصل میں واحد مؤنث کا صیغہ ہے، لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ناقص لفظ ناقص ہے اور ناقص سے بنا ہے ناقصہ۔ اب افعال ناقصہ جو ہے، افعال ناقصہ اصل میں کیا ہے؟ یہ ایسا ورب ہے جو ناقص ہوتا ہے۔ اگر ہم انگلش کی بات کریں گے، وہاں پر ہمیں جہاں پر ٹرانزٹیو اور انٹرانزٹیو ورب مل جاتے ہیں، وہیں پر ایک اور ورب ہوتا ہے کام کرنے اور کام کے دکھانے کے اعتبار سے۔ ایک کو ہم جو ہے ویک ورب بھی کہتے ہیں، ویک ورب بھی کہتے ہیں، یا اس کو ہم ہیلپنگ ورب کہتے ہیں، ہیلپنگ ورب کہتے ہیں، یا دوسرا نام اس کا آگزلری ہوتا ہے۔ وہاں پر جو آگزلری ورب ہو یا ہیلپنگ ورب ہو، اور جس کو میں عام فہم زبان میں ویک ورب کہتا ہوں، ایک قسم کا اس میں ایک نقص ہوتا ہے، کمزوری ہوتی ہے، وہ کمزوری میں ابھی آپ کے سامنے بتا دوں گا۔ تو اس اعتبار سے اسے ہم عربی زبان اور اردو زبان میں لفظ ناقص کے نام سے استعمال کرتے ہیں۔ گویا کہ جو ویک ورب ہو، ہیلپنگ ورب ہو، یا میں نے کیا کہا لفظ، اسی طرح سے آگزلری ہو، اس کو ہم یہاں پر کیا ہے؟ ناقص کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے افعال ناقصہ ہوتے کیا ہیں؟ کیونکہ افعال ناقصہ کو جاننے سے پہلے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کچھ افعال وہ ہوتے ہیں جو ناقص نہیں ہوتے ہیں، لہذا ان کو ہم افعال تامہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ افعال تامہ، جن کو ہم سٹرونگ ورب کہہ سکتے ہیں، جن کو ہم مین ورب کہہ سکتے ہیں، جن کو ہم کمپلیٹ ورب کہہ سکتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے افعال ناقصہ کو اب ہمیں یہاں پر جو ہے تھوڑا سا پہچاننا ہے۔ اگر ہم ناقص لفظ کو لیں گے، صرف ناقص لفظ کو، ناقص اگر ہم فعل کے اعتبار سے دیکھتے تھے تو ہم وہاں پر کہتے تھے کہ جس کا لام کلمہ جو ہے حرف علت ہو، جس میں لام والے کلمے میں الف، واو یا یا آئے، جس کے لام کلمے میں جیسے فعل ہوتا ہے نا فعل، اب فعل کے لام والا جو کلمہ ہے، اگر اس میں الف آئے، واو آئے یا آئے، اور ان کو ہم حروف علت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حروف علت، اور علت بیماری کو، کمزوری کو کہتے ہیں۔ لہذا جس کے لام کلمے میں حرف علت آئے اسے ہم ناقص کہتے ہیں، لیکن وہ ہے اس کے مادے اور اس کے میٹیریل کے اعتبار سے، اس کی بیس کے اعتبار سے۔ لیکن یہاں پر افعال ناقصہ سے یہ والی بحث مراد نہیں ہے، وہ اب ہم آپ کے پاس جائیں گے کہ وہ اس سے اب مراد کیا ہے۔ اصل میں افعال ناقصہ کچھ ایسے افعال ہوتے ہیں جن کی گردان تو ہوتی ہے، جن کی گردان ہوتی ہے، اور جن میں زمانہ بھی پایا جاتا ہے، لیکن ان میں فعل پایا نہیں جاتا ہے، ان میں فعل اصل میں پایا نہیں جاتا ہے۔ جیسے میں آپ کو کہہ دوں کہ اب افعال ناقصہ کون کون سے ہیں، افعال ناقصہ کون کون سے ہیں، اس میں سب سے پہلا آتا ہے کانا۔ کیا آتا ہے؟ کانا۔ اب کانا جو ہے، کانا یہ ہے فعل ناقص۔ اب فعل ناقص کیوں کہتے ہیں اس کو؟ کیونکہ یہ ایسا فعل ہے کہ جو جس میں اندر میں جو ہے فعل، یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں فعل نہیں پایا جاتا ہے، لیکن اس میں زمانہ پایا جاتا ہے۔ جیسے اس میں زمانے ماضی پایا جاتا ہے، یہ تھا کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح سے سارا ایک لفظ ہے کانا، اسی طرح سے سارا ہے، اسی طرح سے اصبح ہے، اسی طرح سے امسا ہے،
इसी तरह से अज़हा है, इसी तरह से ज़ल्ला है और बाता, और एक और लफ्ज है लैसा। क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ इन्हीं के बारे में बहस है, हालांकि ये 17 आते हैं। कितने हैं? ये 17 आते हैं, लेकिन आपको यही 8 के सिलसिले में जो हम यहां पर बात करेंगे। और इन अफ़आले नाक़िसा को दूसरा नाम भी दिया जाता है, वो आप याद रखेंगे। हो सकता है बसा औकात आपके एग्जाम में भी इस तरह से आ जाए, या कहीं पर आपने किताब में देखा हो कि कहां वहां पर लिखा होता है काना व अखवातुहा, काना व अखवातुहा, काना और उसकी बहनें, काना और उसकी बहनें। तो काना और उसकी बहनें से मुराद क्या होता है? काना और इसकी बहनें हैं सारा, अस्बहा, अमसा, अज़हा, ज़ल्ला, बाता, लैसा। और इसके एतबार से कुछ और भी अफ़ाल है जिनका अफ़ाल का तज़किरा फिलहाल मैं यहां पर मुनासिब नहीं समझता हूं। लेकिन जब आप एक फ़ेल नाक़िस के बारे में हम गुफ्तगू करेंगे तो खुद ब खुद जो जितने बाकी वाले अफ़ाल हैं, अफ़ाल नाक़िसा हैं, वो खुद ब खुद आपके समझ में आ जाएंगे। तो सबसे पहले होता क्या है कि हम वहां पर देखते थे कि वहां पर जब कोई फ़ेल आता है, उस फ़ेल के बाद क्या आता था? फ़ाइल आता था और कोई ना कोई मफ़ूल होता था। जैसे मैं आपको एक मिसाल दे दूं, हम कहते हैं ज़रबा ज़ैदुन, ज़ैद ने मारा, ज़ैद ने मारा। तो यहां पर काम क्या है? ज़रबा। काम क्या है यहां पर? ज़रबा। और मारने वाला कौन है? ज़ैद है। गोया कि ज़ैद यहां पर फाइल है, ज़ैद यहां पर फाइल है। और इसके साथ साथ में अगर हम कहेंगे कि किस पर फ़ेल वाक़े है, यानी किसको मारा गया होगा, ठीक है ना, तो हम कहेंगे ज़रबा ज़ैदुन अम्रन, ठीक है। ज़ैद ने मारा किसको? अम्र को। अब जिस पर फ़ेल वाक़े होता है उसको हम इस एतबार से टर्मिनोलॉजी में कहते हैं, अरबिक टर्मिनोलॉजी में हम उसको कहते हैं मफ़ऊल। ये हुआ फ़ेल और ये हुआ फाइल और ये हुआ मफ़ऊल। लेकिन जब हम इस पर बात करेंगे, ये जुमला जो होता है, इस जुमले को हम जुमले फ़ेलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? जुमले फ़ेलिया। लेकिन यहां पर आपको एक अच्छी बात बताई जा रही है कि जब काना और इसकी जो बहनें आती हैं वो इस तरह से जुमले फ़ेलिया पर नहीं आते हैं, बल्कि ये जुमले इस्मिया पर आते हैं। किस पर आते हैं? और जुमले इस्मिया क्या होता है? जुमले इस्मिया मुतकव्वन होता है, यानी वो बना हुआ होता है एक मुब्तदा से और दूसरा खबर से। किस किस से? गोया कि इसमें क्या क्या चीजें आती हैं? एक मुब्तदा और खबर। जो मुब्तदा और खबर से जुमले इस्मिया बनता है उसी पर काना और उसकी बहनें, और उसकी बहनें कौन कौन सी हैं जरा बताइए। हाँ जी, सारा, अस्बहा, अमसा, अज़हा, ज़ल्ला, बाता और लैसा। हाँ, इसके अलावा भी और है, लेकिन गुफ्तगू हम इन्हीं के सिलसिले में करेंगे। तो काना और उसकी बहनें असल में जुमले इस्मिया पर आते हैं, लेकिन ऐसा जुमले इस्मिया जो जुमले इस्मिया किससे बना हुआ हो? मुब्तदा और खबर से। ठीक है, इतना ज़हन में आया? हमने बहस शुरू की अफ़आले नाक़िसा से। अफ़आले नाक़िसा असल में ये वीक वर्ब होते हैं, ये काम को ज्यादा जाहिर नहीं करते हैं लेकिन जमाने को जरूर जाहिर करते हैं। क्योंकि इनको आप अफ़ाले नाक़िसा क्यों कहते हैं? जिस तरह से फ़ैल की गर्दान आती है, जिस तरह से फ़ैल की तसरीफ होती है, तसरीफ गर्दान को कहते हैं। जैसे फ़ैल की तसरीफ होती है, फ़ैल की गर्दान होती है, इनकी भी अपनी गर्दान होती है। जैसे हम कहते हैं कि काना के अगर ये माजी का लफ्ज है, इससे काना से इसका मुजारे बन जाता है यकूनो, और काना की अपनी गर्दान बनेगी काना, काना, कानू, कानत, कानता वगैरह वगैरह। ठीक है, फिर यकूनु से भी यकूनु, यकूनानी, यकूनूना। ठीक है, तो गोया की गर्दान के एतबार से फ़ैल के मुशाबे होते हैं, लेकिन चूंकि इनको नाक़िसा इसलिए कहते हैं खुद ब खुद असल में कमजोर होते हैं। इनमें जमाना तो पाया जाता है लेकिन फ़ैल ज्यादा पाया नहीं जाता। अब मैंने एक और बात कही कि ये कहां पर इस्तेमाल होते हैं। हमने वहां पर फ़ैल ताम को देखा था, वो ऐसे जुमले पर इस्तेमाल हुआ था जिसको हम जुमले फ़ैलिया कहते हैं। लेकिन यहां पर काना और उसकी बहनें यानी अफ़ाले नाक़िसा जुमले इस्मिया पर क्या होते हैं? दाखिल होते हैं। लिहाजा हम कह सकते हैं कि काना व अख़वातुहा, जो काना और उसकी बहनें हैं, यह दाखिल हो जाता है यदखुलु अला जुमलतिन इस्मियतिन, ये जुमले इस्मिया पर क्या होते हैं? दाखिल होते हैं। लेकिन जुमले इस्मिया कौन हो? अल मुतकव्विन, जो बना हुआ हो, मिनल मुब्तदाई, जो मुब्तदा से बना हुआ हो, वल खबरी, और खबर से बना हुआ। और करता क्या है इसका? अब अमल क्या है ना, असल में हम क्या पढ़ रहे हैं? अवामिल पढ़ रहे हैं कि इसका अब अमल क्या होता है। अमल इसका यह होता है कि जब जुमले इस्मिया पर ये अफ़आले नाक़िसा आते हैं, सबसे पहले मैं आपको जरा सा मिसाल के जरिए से समझा दूं। हम एक जुमले इस्मिया लिखेंगे, अल्लाहु
वाहिदुन, ठीक है। अल्लाहु, या हम लिखेंगे अल वलदु, जमीलुन, ठीक है ना। ये जुमला है अल्लाहु वाहिदुन, ये क्या है, जुमले इस्मिया। इसमें क्योंकि इसकी इब्तिदा हुई है इस्म से और इसमें कोई फ़ैल यहां पर पाया नहीं जाता है, लिहाजा इसको हम क्या कहते हैं, जुमले इस्मिया कहते हैं। और अल वलदु जमीलुन, लड़का खूबसूरत है। अब यहां पर भी अल वलदु, ये भी क्या है, मुब्तदा है, और मुब्तदा कौन है, इसमें है यहां पर, लिहाजा जिसकी शुरुआत इस्म से हो और जिसमें कोई फ़ैल ताम ना हो उसको हम क्या कहते हैं, जुमले इस्मिया कहते हैं। अब यहां पर अल्लाहु मुब्तदा है और वाहिदुन इसकी खबर है। अल वलदु यहां पर मुब्तदा है और जमीलुन इसकी क्या है, खबर है। अब होता क्या है, मैंने अभी आपके सामने कहा कि जो ये काना और उसकी बहनें होती हैं ये जुमले इस्मिया पर दाखिल होते हैं। चलिए फिलहाल के तौर पर हम काना को यहां पर दाखिल करेंगे, किस पर, हम किस पर दाखिल करेंगे, जुमले इस्मिया पर। हम जुमले इस्मिया पर अब काना को दाखिल कर रहे हैं। अब काना को दाखिल करने के लिए हमें अब क्या हो रहा है, यहां पर जब मैंने काना को जुमले इस्मिया पर दाखिल किया, अब इसका अमल करना शुरू हो जाएगा। आदमी जो है अभी तक बहुत थका हुआ है या आदमी के सर में दर्द हुआ है, तो अब वो क्या करता है, वो टैबलेट लेता है, वो कोई दवाई लेता है। अब दवाई ले जाने के बाद जब वो मैदे में पहुंच जाएगी, मैदे में पहुंच जाने के बाद वो अपना अमल शुरू कर देगा कि उसका जो अमल होगा, अगर वो एंटीबायोटिक होगा वो वैसा ही अमल करेगा, अगर वो एंटी इन्फेक्शन होगा वो वैसा ही अमल करेगा, अगर वो एंटी इन्फ्लेमेटरी होगा, अगर यानी कि वर्म सूज को खत्म करने के लिए होगा, गोया कि जिसकी चीज के लिए हमने कोई दवाई खाई है उसी का वो अमल करेगा। यहां पर काना अब क्या अमल करता है वो आपको असल में समझना है कि काना जब जुमले इस्मिया पर आता है, काना जब जुमले इस्मिया पर आता है तो काना वो अपने उसके मुब्तदा को, किसको, जुमले इस्मिया के मुब्तदा को जो है रफा देता है। रफा कहते हैं हम पेश को, फिलहाल आप पेश को ज़हन में रखिए, वो इसको क्या देते हैं, रफा देते हैं। हालांकि रफा कहते हैं जम्मा वाली सूरत को, जहां पर पेश वाली सूरत हो, पेश वाली शक्ल हो, उसको हम क्या कहते हैं, रफा कहते हैं। तो काना जब जुमले इस्मिया पर आता है तो वो उसके मुब्तदा को क्या देता है, रफा देता है। क्या देता है, रफा देता है। रफा समझ में आया। अब रफा देने के बाद इस, अभी तक इसको हम कहते थे मुब्तदा, अब इसको हम कहेंगे काना का इस्म, काना का इस्म, काना, ये काना का इस्म कहलाएगा। अभी अब गोया कि अभी तक जो है जब हमने कोई चीज ओढ़ ली, अभी तक तो जो है इसका नाम कपड़ा था, लेकिन जब इसको सिलाई की गई, जब इसको दर्जी ने अच्छी तरह से सी लिया, अब इसका कपड़ा नाम नहीं रहता है, अब इसका या तो फ्रॉक नाम रहेगा, इसका नाम शलवार होगा, इसका नाम कमीज होगा, इसका नाम कोई और चीज अब होगा, अब इसका नाम कपड़ा नहीं रखेंगे। अभी तक तो ये क्या था, मुब्तदा, क्या था, मुब्तदा था। अब इसको काना का इस्म कहेंगे। क्या कहेंगे, लिहाजा पहला अमल क्या किया काना ने कि काना ने इस मुब्तदा को रफा दिया। क्या दिया, रफा दिया। जब रफा दिया तो इसका नाम अब बदल गया काना का इस्म। और जो वाहिदुन यहां पर खबर है, जुमले इस्मिया की क्या थी, खबर थी। इस काना के इस काना जब इस पर जुमला, काना या उसकी बहन है, काना और उसकी बहनें जब इस पर दाखिल हो जाएंगी तो इसको ये नसब देंगे। क्या देंगे, नसब देंगे। नसब जबर वाली हालत को कहते हैं, चाहे वो एक जबर हो या दो जबर हो, ठीक है ना। तो इस एतबार से, हरकत के एतबार से जबर और दो जबर, और जब उसको हमने आपको बताया था कि जब वो हरकत के एतबार से भी रफा आता है और वो हर्फ के एतबार से भी आता है। अलिफ नून ये जम्मा के लिए इस्तेमाल होता है और या नून जो है किसके लिए इस्तेमाल होता है, नसब के लिए इस्तेमाल होता है। वो दूसरी बहस है, हम उसको इंशाअल्लाह ताला जो है दूसरे मौके पर आपको और तरह सा पेश करेंगे। लेकिन यहां पर अब काना जुमले इस्मिया पर दाखिल हुआ, इसके मुब्तदा को उसने क्या किया, रफा दिया। हालांकि उसमें पहले ही से क्या था, रफा ही था। अल्लाहु में पहले ही क्या था, रफा था, लेकिन हमने कहा कि काना ने दाखिल होने के बाद इसमें रफा दिया, ठीक है। अब इस काना के इस इस्म को अब हम क्या, इसको हम काना का इस्म कहेंगे। अब इसके बाद जो वाहिदुन था, वाहिदुन में इसने क्या किया, यहां पर इसको वाहिद को यानी कि जो इसकी खबर थी, इस खबर को काना ने नसब दिया। क्या दिया, नसब दिया। क्योंकि यहां पर दो पेश था, अब यहां पर दो जबर आ जाएगा। तो अब हमारे सामने जुमला ऐसे बनेगा, क्या है, कान अल्लाहु वाहिदन, कान अल्लाहु वाहिदन। इसी तरह से अगर हम कहेंगे यहां पर कानल वलदु जमीलन,
कानल वलदु जमीलन, क्योंकि काना अपने मुब्तदा पर आकर उसे क्या देते हैं, रफा देते हैं, और जब वो जुमले इस्मिया की खबर पर आता है तो उस खबर को क्या करता है, नसब देता है। लिहाजा इस एतबार से काना और उसकी बहनों का ये अमल होता है कि काना जुमले इस्मिया पर आता है, जो जुमले इस्मिया मुब्तदा और खबर से बना हुआ हो, और जब वो उस पर आते हैं तो मुब्तदा को रफा देता है और उसे क्या कहा जाता है, काना का इस्म कहा जाता है, और खबर को वो क्या करते हैं, खबर को वो नसब देता है। और इस काना, अब इसको अब काना ही की खबर कहेंगे, क्या कहेंगे, ये काना की खबर हो गई। अभी तक अल्लाहु वाहिदुन मुब्तदा और खबर थी, ठीक है ना, इसको हमने जुमला इस्मिया कहा था। अब हम जब इसको कहेंगे ये कान अल्लाहु वाहिदन आएगा, अब वाहिदन इस काना की खबर कहलाई जाएगी। मैं समझता हूं कि अब काना हो या इसकी बहनें सारा, असबहा, अमसा, अजहा, ज़ल्ला, बाता, लैसा, जो भी इनमें से आएगा, अब वो तमाम के तमाम अफाल जो है, जिन अफाल को हम क्या कहते हैं,